I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights a irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached, my head throbbed. I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. अब हमारा राइटर क्या कह रहे हैं, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस. फ्लेल्ड मतलब हैंड वेव करने के मोशन को रेफर किया जाता है फ्लेल्ड. मैंने ऊपर आके सरफेस पे आई वेव माई हैंड्स की समवन विल सी दैट आई नीड हेल्प एंड he tried to breathe in, but what all he got water and he got choked on water. I tried to bring my legs up, but they hung as a dead weight. पैर वो अपने पैर मूव करके ऊपर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे सो दैट ही कैन पैडल एंड स्विम, बट उनके पैर ऐसा फील हो रहा था जैसे दे आर डेड, दे आर पैरालाइज. वो उनका मतलब दे आर डेड एंड पैरालाइज, कुछ काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द कमांड ऑफ द ब्रेन. एंड इट वॉज फीलिंग लाइक कि कोई ग्रेट फोर्स उन्हें पानी में दोबारा खींच रही है. इट वॉज फीलिंग लाइक कि जैसे हम लोग कभी कभी नाइटमेयर में होते हैं, किसी बुरे सपने में होते हैं, एंड वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट. द फीलिंग वाज वेरी सिमिलर टू इट. He was trying to get out of the irresistible force. He was fighting an irresistible force. I had lost all my breath. He was almost out of his breath. His lungs were already aching. Why were they aching? There was shortage of oxygen, and he had swallowed a lot of water. And his head was throbbing. He was getting dizzy. Dizzy मतलब थोड़ा सा जब sleepiness आने लगती है, unconsciousness आने लगती है, that is dizziness. But he still remembered the strategy. What was the strategy? कि भाई once I'll get down, I'll make a jump and I'll come up. So this is actually the second time he's getting down, and still he is somewhat around with the same strategy कि मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर की तरफ jump लूंगा and like a cork यानी एक wooden piece की तरह I'll come up and I'll strike out my hands, I'll pedal my legs and I'll get to the edge of the pool safe. I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. I was striking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Now he was just the way उन्होंने first time feel हुआ था कि ये 9 feet की जो depth है इसे cover करने में it was feeling like 90 feet की depth, तो as if it was long journey. इस बार भी it was feeling like an endless journey. He is going down and down and down. और उन्होंने बीच में एक बार आँख खोली तो all he could see is that yellowish water around him and he was full of fear now. इतना ज़्यादा डर था, अब पिछली बार से भी ज़्यादा डर है. और हमें कैसे पता चल रहा है कि ज़्यादा है? And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. अब उनका जो डर था वो इट वॉज एट अ पॉइंट जहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा था, एंड नो वन कैन को रिलेट विद दैट काइंड ऑफ फियर अंटिल अनलेस उन्होंने खुद ये ऐसा फियर कभी एक्सपीरियंस किया हो. ठीक है, अगर आपने वैसा डर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप कभी नहीं समझ सकते व्हाट काइंड ऑफ अ फियर ही वाज फीलिंग दैट टाइम. ही वाज टेरेबल, ही वाज शेकिंग इनसाइड द वाटर आउट ऑफ फियर, मियर फियर इट वाज देयर कि अब तो मैं डूब ही गया. ही वाज फीलिंग पैरालाइज्ड, उनकी बॉडी
जैसे बिल्कुल रिजिड हो गई हो, कुछ काम नहीं कर रही है। एंड ये सब क्यों हो रहा था? इट वॉज रिजिड विद फियर, डर की वजह से। ही वॉन्टेड टू स्क्रीम बट उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो धड़कनें थी और उनकी जो हेड में पाउंडिंग फील हो रही थी उन्हें, सिर्फ दोज वर द सिंबल्स दैट ही इज स्टिल अलाइव. And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had, but the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, but nothing but water. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. अब उन्होंने इस पूरे डर के बावजूद भी, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, उसके बाद भी उनको अभी भी याद था कि क्या करना है उन्हें। एक स्ट्रैटेजी को स्टिक करना है, उसे फॉलो करना है कि जब वो नीचे जाएंगे और जैसे ही वो बॉटम हिट करेंगे उन्हें जंप करना है। एंड फाइनली वो टाइम आया जब वो दोबारा से नीचे गए और जैसे ही उनके टोज ने फ्लोर टाइल्स टच किए, ही मेड अ जंप विथ एवरीथिंग ही हैड, ऑल द एनर्जी ही वाज लेफ्ट विथ, बट द जंप मेड नो डिफरेंस. यहाँ पे क्यों कहा गया कि जंप मेड नो डिफरेंस? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि जंप करते ही लाइक अ कॉक ही कम अप टू द सर्फेस, बट ऐसा नहीं हुआ. अब भी वो एकदम से ऊपर नहीं आए थे, इंस्टेड वो पानी के अंदर ही थे, उनके चारों तरफ पानी ही था और उनके मन में और ज्यादा डर हो गया. यहाँ पे डर को, जो पानी का डर था, उसे किससे रिलेट भी किया गया, किससे कंपेयर किया गया? लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज वेरी पावरफुल, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी पावरफुल. उससे कंपेयर किया गया कि इस तरीके से मेरे को डर ने पकड़ लिया था, उस टाइम पे जकड़ लिया था. ही वॉज शेकिंग, ही वॉज ट्रेमलिंग आउट ऑफ फियर, और उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी. ही वॉज ट्राइंग टू कॉल, कि मेरे आवाज लगा कि मैं अपने लिए मदद को बुला लूं, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. And again, जैसे वो धीरे धीरे नीचे आए थे, अब वो फाइनली धीरे धीरे ऊपर जंप के बाद ऊपर आ रहे थे. एंड फाइनली वो थोड़ी रोशनी उन्हें दिखाई दी, पानी कम होने लगा. एंड ही वॉज कमिंग आउट टू द सर्फेस. एटलीस्ट उनकी नाक तो सर्फेस तक आ ही गई थी. उनकी आंखें बाहर थी, उनकी नाक बाहर थी, बट उनका मुंह नहीं आ पाया था. सो व्हेन ही ट्राइड टू सक इन सम एयर, ही ट्राइड टू गेट सम एयर, what he got instead, he got water. He sucked water, and then once again he went down for the third time. This is important. How many trips he took? फर्स्ट टाइम जब बुली ने फेंका था उन्हें नीचे, सेकेंड टाइम जब उन्होंने जंप किया था और उसके बाद वो दोबारा नीचे की तरफ जा रहे थे, और अब ये थर्ड टाइम. ओके. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept all over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently. To float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mother's. Now I must go to sleep. अब ये थर्ड टाइम जब वो पानी में दोबारा जा रहे हैं नीचे की तरफ, वो डूब रहे हैं. एक्चुअली ये पूरा जो हमें सिनेरियो बताया, दिस इज हाउ वन एक्चुअली काइंड ऑफ ड्राउन्स डाउन. ठीक है, वो इस तरह से कोई भी इंसान डूबता है. जब वो सिंक कर रहे होता है इंसान, ही इज ड्राउनिंग, तो वो इस तरह से कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, और इस तरह से होता है सब कुछ. ठीक है, इन्होंने बिल्कुल बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ. ठीक है, अब जब वो थर्ड टाइम नीचे जा रहे हैं, ही इज ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ, ही इज ऑलरेडी आउट ऑफ एनर्जी. वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है. नाउ ही इज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. व्हाई ही इज फीलिंग रिलैक्स्ड? बिकॉज ही इज समवट अराउंड गेटिंग अनकॉन्शियस. ठीक है, तो अब उनके सारे एफर्ट सीज हो गए. अब वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं बचने का, ऊपर आने का. ठीक है, कुछ पकड़ने का, रोप या लेडरेट को पकड़ने की कोई होप नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है. I relaxed. He instead relaxed. His legs felt limp. जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है, और उनके दिमाग में एक थोड़ा सा अंधेरा सा छाने लगता है. Blackness swept over my brain. It wiped out fear. और इस सबसे क्या हुआ? अब उनके मन में कोई डर नहीं रहा.
देयर वॉज नो पैनिक, कोई उन्हें हबड़ दबड़ भी नहीं थी कि कोई पैनिक फील हो, कोई डर हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ये करना है, नथिंग. बट इंस्टेड व्हाट ही वाज फीलिंग नाउ, ही वाज फीलिंग क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. ऐसा लग रहा था आप यार किससे डरना है, कोई ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी डरना ही नहीं है. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप. ये अच्छा है, नींद आ जाए, थोड़ा सा ये जो नींद का माहौल बन रहा है अब इसमें सो जाना ही बेटर है. कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जंप करने की, और मैं थक भी गया हूँ, मैं जंप कर भी नहीं सकता हूँ, टू टायर्ड टू जंप. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. अब इस तरह से जिस तरह से मैं फ्लोट कर रहा हूँ, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज लाइक टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. किससे कंपेयर किया गया इस फीलिंग को? टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. I crossed the oblivion of the and the curtain of the light fell. Oblivion refers to unconsciousness. Conscious मतलब oblivion refers to consciousness. I crossed to oblivion यानी अब वो unconscious हो गए थे, ठीक है. And the curtain of light fell मतलब उनके लिए अब जिंदगी खत्म हो गई थी. It was death. We'll keep till here only today, and in next chapter, next video we'll be completing with the chapter, will be ending with this chapter. And if you want any other particular chapter to cover, you can let us know in the comment section, and we'll update the next video about that particular chapter. Okay, so study hard,